کیونکہ میری بہن نبی آئے 1,24,000، ان میں سے رسول آئے ہیں 313، اور ان رسولوں میں سے شریعت والے آئے ہیں 5 نبی، ایک حضرت نوح، بالکل ایک حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل شریعت لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختتام ہو گیا ہے. اور یہ کبھی کہتے ہیں کہ بغیر شریعت والا ہے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دوسری ٹانگ پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ انبیاء صحیفے لائے تھے، پوری کتابیں نہیں لائے تھے. ہاں جی. آپ اس ٹائم کس کنٹری میں رہتے ہیں آپ؟ ان سے پوچھیے زیادہ بھئی کون ہے، اسے بند کرو، اس کا بلاک کرو، بات کر نہیں کیا ہے. سسٹر میری ذرا اسکرین بڑی کیجیے گا. اچھا جی، میں کر رہی ہوں. یہ انٹرفیس ہے فرنٹ اس کا ہمارے اپلیکیشن کا. نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اور ٹاپک بھی نیچے ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے اوپر ٹاپ پہ جو ہے کلک ہیئر ٹو ویو سیوڈ آرٹیکل، جس کے اوپر کا تھوڑا سا پارٹ نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ لکھا ہوا اردو میں یہاں تلاش کریں. اب فار ایگزامپل کہ قادیانیوں کا جو ہے ایک بہت بڑا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جی مرزا غلام قادیانی کا ایک بہت بڑا نشان اس کی سچائی کا یہ بھی ہے کہ حدیثوں میں آیا تھا کہ امام مہدی علیہ رضوان جو ہے وہ جب آئیں گے تو چاند اور سورج گرہن جو ہے وہ ہوگا، اور کہتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ دار قطنی کی ایک روایت ہے اور یہ بالکل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ کسی محمد بن علی نامی کسی بزرگ کا قول ہے، اور اس سے مراد یہ حضرت امام باقر کو لیتے ہیں، لیکن اس کی سند بھی مکمل نہیں ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ واقعی امام باقر ہیں یا کوئی اور ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ہوں تب بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بنتا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ جن کا یہ قول ہے وہ بزرگ وہ بتاتے ہیں کہ امام مہدی، ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ آئیں گے تو چاند گرہن ہوگا رمضان کی 1 تاریخ کو، اور سورج گرہن ہوگا رمضان کی 15 تاریخ کو. اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جب سے زمین آسمان پیدا ہوئے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اور بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ قانون قدرت یہ ہے کہ چاند گرہن ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے منتھ کے، اور سورج گرہن منتھ کے آخر میں ہوتا ہے. یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو چاند گرہن لگتا ہے، اور 27، 28، 29 تاریخ کو سورج گرہن لگا کرتا ہے. یہی قانون قدرت ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن وہ جن بزرگوں کا یہ قول ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک انوکھا ہوگا، یعنی قانون قدرت سے ہٹ کے ایک معجزانہ یہ چاند اور سورج گرہن ہوگا. اب مرزا قادیانی کے زمانے میں تو ایسا ہوا ہی نہیں، وہ تو 13 تاریخ کو ہوا تھا اور ادھر سے 28 تاریخ کو ہوا تھا. تو مرزا غلام قادیانی اس روایت کے مطابق بھی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو اگر وہ اس طرح کا دجل کرتے ہیں تو آپ سمپلی کیا کریں گے، یہ ہمارا جو سرچ باکس ہے اس میں جا کے لکھیں گے چاند سورج گرہن، بس یہ 3 الفاظ، یا چاند گرہن لکھ دیں یا سورج گرہن لکھ دیں، ان میں سے کوئی بھی 2 مین الفاظ جو آپ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ آرٹیکل آ جائے گا. اس پہ کلک کریں آرٹیکل پہ، وہاں پہ وہ سکین بھی لگے ہوں گے، سارے احادیث کے حوالے، احادیث کے جو کتب کے سکین ہیں وہ بھی لگے ہوں گے. تو وہاں سے بآسانی آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کے جھوٹ کو. ایک تو آپ کو ضیاء بھائی قطع کلامی کی معافی چاہوں، ایک تو آپ کو ضیاء بھائی ایویڈنس دے رہے ہیں نا میری بہن، ایک میں آپ کو قرآن سے ایویڈنس دوں. سورہ مائدہ آیت نمبر 110 سب نوٹ کر لیں. سورہ مائدہ 6 سورہ اور 110 آیت، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تو یہ فائنڈ کریں مہدی کیا ہے، مہدی کی فضیلت کیا ہے، مہدی کا علم کیا ہے، مہدی کون ہے جس کا امام مہدی آ رہا ہے. 2 لفظ ہیں، امام مہدی، مہدی کا امام. تو پہلے تو مہدی دیکھیں مہدی کون ہے. قرآن میں مہدی حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ. سورہ مائدہ میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کریں عیسیٰ وہ وقت جب ہم نے آپ پہ، آپ کی والدہ پہ
अपनी रहमत की, अपनी नेमत की कि आप फिल महदी, देखें लफ्ज आया फिल महदी, महदी कहते हैं माँ की गोद को, और इस गोद को बुलंद इसलिए किया गया कि फिल महदी आप माँ की गोद से किताब की, हिकमत की, अंजील की और तुरैत की इल्मी गुफ्तगू करते थे, इल्म तकसीम करते थे। जिस महदी का इल्म इतना ऊंचा हो कि वो हिकमत की, किताब की, तुरैत की, अंजील की बातें माँ की गोद से करे, उसका इमाम वो होगा जिसका इल्म इससे ज्यादा हो। ठीक। दूसरी आ जाए बात कि इमाम मेहदी जो आ रहे हैं वो फर्जंदे रसूल हैं और वो कुल इल्म वाले हैं, कुरान कहता है सूरह राद। फिर ईसा आप परिंदे बना के उड़ाते थे मट्टी से, आप अंधों को आंखें देते थे, आप मुर्दों को जिंदा करते थे। जिस ईसा के ये मौजे हैं उसके इमाम के मौजे इससे ज्यादा होंगे, ज्यादा मौजे दिखाए। और इसका इल्म देखना हो तो बस इसकी किताबें देखे तो शर्म से मर जाने का है। भाई जिया जारी रखें, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मादी को। सिस्टर ये नीचे कह रहे हैं कि मुझे उठाएं कॉल पे, कोई ऐसे कह रहे हैं। जी जी, इनको उठा लें, जो भी है बात कर लेते हैं। और इसी तरह जो है इनमें आप आर्टिकल्स को सेव भी कर सकते हैं कि आर्टिकल पढ़ते पढ़ते को आपको काम पड़ गया तो उसको आप सेव कर लें कि जब फ्री होंगी तो दोबारा वहीं से पढ़ना है तो वो ये फ्रंट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी सेव्ड आर्टिकल्स की। तो दोबारा आएंगी तो आपको वो अंदर सेक्शन में जाके वो आर्टिकल नहीं ढूंढना पड़ेगा, सेव्ड में जाके आप आर्टिकल को पढ़ सकती है। तो इस एप्लीकेशन को जो है ना लाजमी सारे दोस्त जो है ना इंस्टॉल करें और आगे भी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। देखिए इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, आप शेयर करके सदका जारिया ले लें। ठीक है, आप इतनी सी कहने से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थोड़ा एक्सप्लेन करें और शेयर करें। जी डॉक्टर साहब। जी बस मैंने मुख्तसर बयान कर दिया, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आप लोग करें बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपकी अज़मत को सलाम है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने जो काम किया है हमारे जो हमारे कम दीनी जो भाई हैं, जो कम अक्ली हैं, जिनको मतलब ज़्यादा दीन की पकड़ नहीं है, उनके लिए आसानी कर दी है आपने माशाल्लाह। बहुत अच्छा काम किया, मौला आपको सलाम रखे। मैं यही अपील कर रही हूँ सुनने वालों से कि उन्होंने असल काम, इतना बड़ा काम, टाइम लगता है, उसमें टाइम लग के अपने टाइम को निकाल कर जो उन्होंने ये काम किया है काबिल तारीफ है। इसमें जो अब हमारा हिस्सा है, हमें ये करना है, इसे फैलाना है, लोगों को बताना है, ये कह के कि आपको जवाब देना है। आप वहां जाके ब्राडों पे जाके सुमन बुकमन बैठ जाते हैं और जाहिल अपना मंत्र दिखाते रहते हैं, तो आपको जाहिल बन के नहीं वहां बैठना। जी हाँ, ठीक है, आपको जाके वहां जवाब देना। आपके जवाब देने का जिया भाई ने इंतजाम कर दिया है। अब आप अपना थोड़ा वक्त निकाल के एक तो इसे पढ़ें, दूसरा इसे शेयर करें। इंशाअल्लाह। और इस चीज़ को पढ़ें कि जो चीज़ें आपको, ताकि हाजिर जवाब भी आप में आए, ताकि जो सवाल और कुछ नहीं कर सकते इस मलून की ना। यूट्यूब पे भी ना कुछ मोमिनीन ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने ये तस्वीर जैसे यूट्यूब से स्क्रीनशॉट की है, वहां से स्क्रीनशॉट करें, यहाँ से जिया भाई की मेहनत को लें, एक पोस्ट बनाएं और डालें। हाँ, और मेरा चैनल भी है आका का गुलाम के नाम से, और वहाँ पे भी आपको इनके साथ डिबेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। यूट्यूब पे आप लिख के ज़िया रसूल डिबेट्स, तो आपको बहुत सारी सैकड़ों डिबेट्स मिल जाएंगी इनके साथ, जो कादियानियों के साथ मैंने की हुई है। तो वहाँ
से आप उनको सुन के भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि भाई इनसे बात कैसे करनी है, कैसे इनको पकड़ना है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सही सही। हमारा तो अभी असल जो हमने प्लानिंग की है वो ये है, जिनकी जो ब्रॉड पे जो ये बकवासात कर रहे होते हैं, तो उन्हीं की वो बातों को निकाल के उसको रिकॉर्ड करके और उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करके हमने उसके ऊपर आपकी ये एप्लीकेशन का लिंक दे देना कि भाई इस मतलब का इस बात का जवाब आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और वो हम पोस्टें लगाएंगे ताकि जो पढ़ने वाले हों उनको ये पता चले कि ये एप्लीकेशन क्या काम कर रही है। फिलहाल तो हमने भी ये सोचा कि इसके ऊपर काम करें। वही ना, आप अपनी ब्रॉड उसकी उनकी ब्रॉड की थोड़ी सी स्क्रीनशॉट लें। अभी वो आज उन्होंने लगाई हुई थी, कल एक फर्जी ड्रामा एक औरत बैठाई हुई थी, ये देखिए एक और हमारी बहन कादियानी हो गई, हमारी एक और बहन कादियानी होगी। देखिए मैंने कहा ये ड्रामे ना बता, जो बहन कादियान छोड़ के आई है ना, उस पर तुमने जो जुल्म किया ना, मैं वो लगाऊंगी। हमें ना ये बताओ। इन्होंने एक और भी बच्चियों के साथ किया है कि उन्हें जिनके घर की बच्चियां हैं ना, दो दो तीन तीन, जिन्हें खुशबू मिल जाती, कोई भी वहां बच्ची है, उसके बाप को किसी तरीके से बाहर भेजने का लालच देते हैं, और फिर उनके साथ क्या करते हैं, उन बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं उनके घरों में जाके। जी हाँ, ये वही है सर। डॉक्टर साहब ये आपने केस में रखा है। देखिए हम सबके ईमान की भी पूछगिछ होनी है ना, तो हर कोई अपना हिस्सा डाले। ये भी सरकारी मुसलमानों तो वैसे उनका कौन है, ये कादियानी है, अक्सर सरकारी मुसलमानों का। डॉक्टर साहब को तो पसंद करता है ये लोग। जो आप लोगों को इतना टाइम लगना था किताबें देखने का, आयात देखने का, पढ़ने का, वो आपका टाइम सेव हो गया कि कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, जिया भाई जिसमें सरे फेरिस्त है। तो अब अल्लाह ताला तो आपसे पूछेगा कि आप तक देखें, अल्लाह हम में गवाह है। जब 3 लोग बात करते हैं, चौथा अल्लाह, जब 4 लोग गवाह बात करते हैं, 5वां अल्लाह। तो हमारे मेरे और आपके अमालनामे में ये सेफ हो गया है बिल्कुल कि यहाँ जिया भी बैठा हुआ था, मैं भी बैठी थी, हमने आपको ये बात की थी। बिल्कुल। जिसने सुन के अमल नहीं किया वो जाने, उसका रब जाने। हमने अपनी तरफ का काम कर दिखाया। रसूल भी इसी तरह दीन आप पुचाते थे, जबरदस्ती कान से पकड़ के अमल नहीं करवाते थे। ला इकराहा फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल अभी सिस्टर जैसा कि बात कर रही थी कि आपने इनकी ब्राड पे जाना है तो वहाँ सुमुम बुकमुन होके नहीं बैठना। ये ज़हन में रखें कि ये कादियानियत जो है ना, ये एक कुफर है, एक कल्ट है, और दुनिया के बुज़दिल तरीन डरपोक तरीन कौम है। जी ये हर लिहाज से कमज़ोर तरीन कौम है, डरपोक तरीन कौम है। ना इनके पास दलाइल है, ना इनके पास कुछ और है। तो वहाँ जाके आपने रोब से बात करनी है। हाँ जी ये नहीं कि आप डर डर के बात करें वहाँ जाके, तो घबरा घबरा के बात करें, नहीं, रोब से बात करनी है। मुसलमान का काफिर पे रोब होता है। बिल्कुल तो कुरान पाक में भी है ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं वो कुफ़ार पे शदीद हैं। तो हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम कुफ़ार पे शदीद हैं। तो वहाँ जाके आपने रोब से बात करनी है। ये तो हमारे ग़ुलाम है, ग़ुलाम भी हम तो इनको रखना पसंद नहीं करते, वो मजबूरी के तहत रखा हुआ है।
تو وہاں آپ نے روب سے بات کرنی ہے، بالکل کسی بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس ہے بیچاروں کے پاس کیا سوائے جھوٹ کے، وہ صرف لفاظی کر کے، الفاظ کا ہیر پھیر کر کے، الٹے سیدھے سوالات گڑے ہوتے ہیں انہوں نے، وہ کر کے تو آپ کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں بس لوگوں کو بیٹھ کے. کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی. تو ان کی بالکل کنفیوژن میں آپ نے نہیں آنا، اور جا کے اپنا موقف جو ہے ان کا دجل جو ہے وہ سامنے رکھنا، چپ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں اپنا کام کریں، تاڑ پھاڑ کر کے آ جائیں بس. انہوں نے اس آیت کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ ملون کہتے ہیں، یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، 29 نمبر ہے اس کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے محمد اور رسول اللہ کر کے رسول کو مخاطب کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھیوں کو کا ذکر کیا. یہ کہتے ہیں جو رسول کو یہاں محمد اور رسول اللہ کر کے مخاطب کیا گیا ہے، یہ اصل میں مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ کیا گیا. یہ وہ ملون کہتا ہے میرے لیے یہ آیت اتری ہے، میں نے ان سے آپریشن کر دیا. میں نے کہا اس ملون سے کہو کہ اس نے تو جہاد کو باطل قرار دیا اپنی کتاب میں، اور دوسرا اس ملون سے کہو اس کے کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے شدت دکھائی ہے. وہ تو رسول کی ہسٹری سے ملتا ہے شدت جنہوں نے دکھائی ہے. بالکل. جنگ احد دیکھیں، جنگ تبوک دیکھیں، جنگ خندق دیکھیں، اور خیبر کا تو کوئی بات ہی نہیں. اس کی کون سی ایسی جنگ ہے جہاں شدت نظر آتی ہے اور اس کے ساتھیوں کی ہوتا ہے. اس کے ساتھی ایک نور الدین تھا جو اس کی بیوی پہ بری آنکھ رکھتا تھا. اس کا بیٹا کہتا ہے ہم نہیں کہتے، ہم ایسا بےہودہ کلام نہیں کرتے. اس کا بشیر مرزا کہتا ہے کہ نور الدین بیوی صاحبہ کہتے ہیں. اب ان کی اردو ہے، پتہ نہیں ہندی ہے کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جاوے گا، کھاوے گا، آوے گا، اور بیوی صاحبہ. بیوی صاحبہ کا لفظ نہ ہندی میں ہے نہ اس میں ہے اردو میں ہے. وہ بیوی صاحبہ کہتے ہیں، جبکہ پوری جماعت جو ہے وہ ام المومنین کہتی ہے نصرت بیگم کا نعوذ باللہ. میں ام القادیان کو تو سوٹ کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے چلے گا. اب وہ جواب اسے اسی کتاب میں وہ نور الدین دیتا ہے. نور الدین کہتا ہے اپنی اماں سے پوچھ، مجھ پہ الزام نہ لگا. تیری اماں کہتی ہے نور الدین میں آپ کی لونڈی ہوں، مجھے اپنی لونڈیوں میں شمار کریں. میں تمہاری نصرت بیگم کو لونڈی بننا سمجھایا، کیونکہ قرآن میں تو لونڈیاں استعمال کے لیے رکھی جاتی تھی، جو قرآن کی آیت ہے. میں نعوذ باللہ کسی نبی کی بیوی کسی کی غیر معصوم کی لونڈی نہیں ہو سکتی. خوف خدا کھا. جس نے کسی غیر معصوم کے ساتھ ایجنڈے میں بھی کام کیا، اللہ نے انہیں بھی جہنم میں ڈالا. نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، نبی کی ایجنڈے کے خلاف، نبی کی نظریے کے خلاف وہ جا کے دشمنوں سے ملی، اللہ نے دونوں کو جہنم میں بھیجا ہوا ہے. گرنٹڈ ویزا رکھا. جو رسول کے ساتھی تھے ان کے ایمان کو اللہ دکھا رہا ہے. وہ اس ایمان پہ تورات زبور سے پہلے ان کا ایمان تھا. ہم نے اس کا ذکر تورات میں بھی زندہ رکھا، انجیل میں بھی رکھا، اب قرآن میں بھی ہے. یہ صرف ہم قرآن میں ذکر نہیں کر رہے. تو میں نے کہا اس ملون سے پوچھو تمہارے کون سے ایسے ساتھی ہیں. تو پتا چلا کہ آیت تم جھوٹی ریفرنس کر رہے ہو، تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. یہ بات میں نے ان کے ساتھ اس میں بھی کی تھی، مناظرے میں بھی کی تھی. میری براڈ پہ آ کر یہ مجھے جواب نہیں. اس کے بعد میں نے انہیں آفر کی تھی، میں نے کہا تھا آپ میری براڈ پہ آئے اور ثابت کریں. میری براڈ پہ آتے تو میں نے روحانی خزائن کھولنا، میں نے سیرت مہدی کھولنی ہے، میں نے حمامہ بشرا کھول دینا. قرآن کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے ہم ان سے قرآن سے بات کریں. رسول کی فضیلت اس لیے قرآن میں ہے، وہ کتاب رسول پہ اتری. اور یہ ملون کہتا ہے قرآن منسوخ ہو چکا ہے. جب اس کی بات ہم نے مان لی، یہاں میں اسے مانتی ہوں، قرآن منسوخ ہو چکا ہے، تو پھر ہم تجھ سے قرآن سے بات کیوں کرے گا؟ ہم تو نہیں قرآن سے بات کرتے. ہاں ہم روحانی خزائن سے بات کریں گے، قرآن سے. وہاں یہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے، انہیں شرم آتی ہے روحانی خزائن کو پڑھتے ہیں. ان کے ملون قادیانی کی کپڑے وہاں اترے ہوئے ہیں
नंगा नंगा शेम शेम, नंगा नंगा शेम शेम के नारे वो अलिफ नून के मुझे आते हैं, और इनके फिर उतरते हैं अपने। मैंने इन्हें भेजा था पैगाम सैफी को, मुझे कशफ में आया है ये मलून, और कानों को हाथ लगा के कहता है मैं तो पहले ही दोजख में चढ़ रहा हूं, ये कमबख्त अपनी रोजी कमा के मुझे और जला रहे हैं। सैफी बाज आजा, तल्ला को भी दे, मसरूर को भी दे। वो आके मेरे कशफ में कहता है मैंने छिल मंतर दू मंतर पढ़ के मैंने किया, तो आजा शैतान के अब्बा। तो उसने कहा हाँ बीबी ने मना कर, ये बराडे ना चलाए। ये मलून पैसे कमा रहे हैं जायनत से, और मैं इधर सड़े सड़ के सड़ा। मैंने कहा जो तू बो गया है वो काटेगा तो सही। मैंने कहा इसी कशफ से उन्होंने ऑरेंज, ये इसलिए मैंने कहा ये मेराज का मजाक उड़ाते हैं रसूल का, जो कि सूरह नजम मेराज के सफर की नेविगेशन करती है। सूरह नजम भाइयों वो सूरह है जो आपको ईमान की तारीफ करती है। क्या करती है? आपसे कोई ईमान की तारीफ पूछे क्या है तो आप क्या देंगे? तो अल्लाह कहता है कि जो बदल रहा था सिदरे मुंतहा पे बदल रहा था, मेरे नबी की आंख ना आगे बढ़ी ना पीछे हटी, ना उनके दिल में कजी हुई, तो मुझे ईमान की तारीफ मिली। जब आंख देखे और दिल यकीन करे, दिल में कजी ना हो, तो समझ लो ईमान की इंतहा है। जब कान सुने रसूल का जिक्र और तुम्हारा दिल गवाही दे, दिल में कजी ना हो, तो समझ जो तुम ईमान की मंजिल पे हो। जब जबान रसूल की फजीलत बयान कर रही हो, तौहीद बयान कर रही हो, और दिल मुतमईन हो, उसमें कजी ना हो, तो समझ लो तुम ईमान की मंजिल पे हो। मुझे तो सूरह नजम से ईमान की दलील मिल गई कि वो रसूल, देखिए एक अनहोनी हो तो आप कहेंगे ना कि कैसा सिदरा मुंतहा, कैसा दरख्त है जिस पे नूर का फल है, वो बदल रहा है, और उसमें कुछ बदल रहा था जिसका कुरान में जिक्र नहीं, कुछ बदल रहा था जो बदल रहा था। क्या तब्दीली थी? ऐसी कोई तब्दीली थी जो हैरान करने वाली थी। पर मेरा नबी इतना मुतमईन था, ना उसमें तजस्सुस हुआ कि मैं इससे आगे देखूं, ना उसमें कोई खौफ पैदा हुआ कि वो पीछे हटा, और उसके दिल में कजी ना हुई। दिलों को अल्लाह कहता है ना मैं दिलों के राजों को जानता हूं। तो हमारा रसूल, आपका रसूल खत्म नबूवत ये है, उसकी फजीलत देखिए। अल्लाह कैसे, ऐसे ही नहीं अल्लाह ने दरूद पढ़ा रसूल पे। और फिर भाइयों, जो जितनी फजीलतें दी जाती हैं अंबिया को, उनकी कुर्बानियों पे दी जाती हैं। आप देखिए बड़े नबी आए, और मूसा ईसा की तो मौत से ही बड़े मशहूर तरीन मौत से हैं। अल्लाह ताला ने आपको फरमाया ना कि पिछली किताबों पे ईमान लाओ, तो पिछली किताबों पे ईमान क्या लाना है कि उनके मौजों का यकीन करो जिनका जिक्र कुरान में है। कि आसा, मूसा का आसा अजदहा बना था, इसमें शक ना करो। मूसा ने दरियाए नील को काटा था, इसमें शक ना करो। ईसा ने अंधों को आंखें दी थी, शक ना करो। ईसा ने परिंदे उड़ाए थे मट्टी के बना के, शक ना करो। तो मैं तो जिसने मुझे ईमान दिया, मैं उस नबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज पे कैसे शक कर सकती हूँ? चांद को शक करने पे कैसे शक कर सकती हूँ? और आप देखिए पूरी दुनिया आज टाइम और स्पेस पे लगी हुई है। क्यों? कि मिराज के वाक़े को झूठा करने के लिए, मिराज के वाक़े का हकीकत पाने के लिए मरे जा रहे हैं यहूद और नसारा। चांद पे चले गए, इनका बाप भी चांद पे नहीं जा सकता। वो मुल्क अजीम वालों का है रास्ता, वहां से कोई गुजर ही नहीं सकता। ये बाजी एक और कितना इन्होंने दे दिया है, फतवा जारी कर दिया। नीचे उनके साथ यहीं बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। की एक दुआ है। वालेकुम। अभी जो है वो खबर आई है, तो वो चूँकि आती रहती हैं, तो जहाँ भी बैठा होता हूँ वहीं बता देता हूँ। हमारी जो खत्म नबूवत की टीम्स कनाडा में भी हैं, बाकी भी कंट्रीज़ में, यूरोप में हैं। तो कनाडा में अभी कुछ देर पहले ही एक स्पेनिश भाई ने इस्लाम कबूल किया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इतने बड़े जाहिल हैं, अपने लोगों को पढ़ा लिखा तस्वर करते हैं। कहते हैं हमारे लोगों में पढ़े लिखे ज्यादा हैं। कहते हैं पाकिस्तान में अब्दुल सलाम को ना वो जो नोबल इनाम मिला था, मैंने कहा कादियानी था। अब्दुल सलाम ने किया क्या? इस्लाम ने गो फक इस्लाम। तेरे मौलवी ने यही तुझे सिखाया है? तेरे मौलवी ने तुझे यही सिखाया है? उसका तो कादियान में ये काम हो गया था। है ये तो बिल्कुल ही
इस्लाम वाला चक्कर ही नहीं था ना। अजीब है, नकली बात। इससे करने से क्या हो जाएगा, तू आप खुद इस तरीके की पैदाकार है, हैं? ये तो वो वो मैंने कहा, उस पे मैंने ने जवाब दिया, मैं एक अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम मिला और एक मलाला को मिला, दोनों का करेक्टर एक ही था, नहीं तो डॉक्टर कदीर खान ज्यादा हकदार था। बिल्कुल। सर मैं ये बता दूं यहाँ पे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का जो नोबेल प्राइज था वो 1/3 था, उसको कंप्लीट नहीं मिला, वो 3 लोगों को एक ही प्राइज मिला था, वो तीनों उसमें 1/3 के हिस्सेदार थे। ठीक है ना, बहल मैंने फिर सही कहा ना, मैंने तब भी मेरे भाई सही कहा। डॉक्टर ये बाजी डॉक्टर ये देखिए कि ये कादियानी साहब एक नीचे कह रहे हैं कि लानत एक दुआ है, ये एक नया फतवा जारी किया है। जी ये इनका जो मुबशर कालो है ना, कादियानियों का बहुत बड़ा मुरब्बी है मुबशर कालो, तो ये इनके टीवी पे MTA पे और इधर उधर इनकी जलसों में वो बहुत तकरीरें करता है। उसने कहा हुआ, उसकी वीडियो मौजूद है, वो कहता है लानत तो दुआ है। फिर तो इनका सवाल किसी ने किया था कि भाई मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये जो 1000 लानतें डाली हुई हैं लिख के अपनी किताब में, लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, इस तरह उसने पूरी 1000 लानतें लिखी हुई हैं, तो भी तो एक बार ही कह दे भी 1000 लानत तुझ पे नहीं, 1000 बार ठीक है लिख के भाई, डाली हमने हैं। मान लिया उमर भाई, आपकी बात तो मान लिया, लानत एक दुआ है, आप पर लानत हाँ, तो वो कहता है जी लानत आपको तो ये एक दुआ दुआ देते है। रहेंगे सारी जिंदगी। देखें वो कैसे ना कहे, क्योंकि मैंने अभी आपको बड़ी मुस्तनद आयत की, सूरह बकरा की, लिख ले नंबर, आयत नंबर 159। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुरान के अहकामात को उनकी मकामात से हिला देते हैं, अल्लाह और रसूल अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले लानत करते हैं। यहाँ अल्लाह ने खुली ऑप्शन दे दी है, जो चाहे लानत करे वो ईमान में दाखिल होता जाए। तो हमारा काम है लानत करना इनके कि इन्होंने खत्म नबूवत पे हमला किया, हम इन पर लानत करते हैं, ये हजार नीचे मार करते हैं, कादियानी, करोड़ बार करते हैं। नीचे एक कादियानी आया हुआ है, ये इनका नया नबी है, मॉडल 2024, इस ये MSR अच्छा? नाम की आईडी है। हाँ ये 2024 मॉडल नबी है इनका, इसने भी नबूवत का दावा किया हुआ है। वेलकम हो गया भैया आपका। ये भी नबी इसको जरा उठाएं ऊपर, ये MSR को आओ नहीं आ रहा है सर, मैंने बड़ी कोशिश करी है। हाँ कैसे आएगा ये? ये दुआ गुस्ल चाहिए खाने का लानत है, के। नहीं ये हाँ, कौन से बाथरूम का जो अपडेट अब बाथरूम बन रहे हैं उनका, उसी गटर की फैक्ट्री में आ गया आ गया प्रोडक्शन है। हाँ जी आप खोल ये नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे ख्याल को एथियस्ट है, इसको निकालो नीचे उतारे, वो MSR है इसकी ऑप्शन। ये उमर फराज जो है ना, ये कादियानी है, और इसने कहा कि नहीं यार, उमर फराज कादियानी नहीं है, उमर फराज कादियानी नहीं है, वो वैसे ही मजाकन कह रहा है। ये MSR नाम की एक आईडी बीच में आई थी, तो वो था कादियानी। अच्छा पता नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, की बातें ही तंजिया तौर पे मैं पेश वो- कर रहा है कि ये लानत तो एक दुआ है। अच्छा एक फैजी उस दिन ना, सैफी ये भी कह रहा था, सैफी से किसी ने पूछा, अहले सुन्नत हमारा कोई भाई था, उसने ना इसकी ब्रॉड पे जाके पूछा, उसने ऊपर जाके पूछा मुझे बताओ कि मलकुल मौत कौन है, वो कौन सा फरिश्ता है, कहता है जिब्राइल। उसने कहा लानत है तेरे और आगे से ढीठ होके कहता क्या है, कहता है रसूल, जब रसूल का आखिरी वक्त था तो कौन आया था, उसने कहा कमबख्त जिब्राइल तो रसूल के घर में चौकीदार भी बन के आता था, दर्जी भी बन के आता था, ये क्या बकवास तू कर रहा है, मुझे तेरे इल्म का आज अंदाजा हो गया। और मैंने इसके जवाब में लिखा नीचे, मैंने कहा यही तो वजह है, हाँ मैंने कहा यही तो वजह, इसने रसूल होने का दावा नहीं करते कि अगर सामने जिब्राइल आ गया इनकी जान तो वैसे ही निकल जाएगी। मिर्जा कादियानी ने भी इसलिए का नाम लिया कि मेरे पास जिब्राइल आया था, कहीं भी नहीं टिकी आया था। एथियस बना देता है और दूसरे भरा ने मैनू कादियानी बना देता है। नहीं मैं उन्होंने दसदा सी, मैं क्या नहीं मुसलमान भाई है ते तंजिया कर रहा है, मैं दसदा है ना। माजरत चाहने आप भाई साहब तड़े से जी इजाजत है। मैं कैसे ये खबीस वैसे रोज आते हैं मेरी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप सबको पता है कि कायदानी कौन है, ठीक है। ये जो है हमारे इस्लाम को, हमारे नबियों को बुरा भला कहते हैं। ये लोग मुसलमान है ही नहीं, इनको डायरेक्ट तमगा मिला है काफिर का, तो ये काफिर ही है, ठीक है ना। तो ये लोग अपने आप को ये ना कहें कि हम लोग बस उससे आगे नबी है, रसूल है, नहीं। सबको पता है ये अल्लाह ने किताब नाजिल की है, कोई ऐसे नहीं नाजिल की। लेकिन थोड़ी सी हमें कमजोरी है ना भाई, आप पढ़ते होंगे, मैं पढ़ती होंगी, या कोई कुरान से ने रेफरेंस कुरान फहमी होगी, लोगों ने कुरान को छोड़ दिया ना। या सूरह मोहम्मद में जाके ये आयत पढ़े आप कि रोज़े क़यामत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था। तो हम लोगों को देखो ना दूसरी मेरी तरफ बहन, देखें, दावत भी दे रहे हैं कि कुरान पे आए, कुरान पढ़ते। मेरी बहन देखो, शादी ब्याह पे एक लड़की जब शादी होती है ना, शादी, तो उनकी फैमिली वाले क्या करते हैं कि कुरान को लेके सर पे रख के लेके जाते हैं दुल्हन के साथ, ठीक है, और गाड़ी में रख लेते हैं, वही कुरान गाड़ी में रवाना कर देते हैं। फिर वहाँ से दूल्हे साहब के घर पहुँचती है तो उसके सर पे लेके और दुल्हन के कमरे में रख लेते हैं। तो कुरान कोई मजाक नहीं है, कुरान में साफ ज़ाहिर लिखा हुआ है। अल्लाह ने क्यों नाजिल की है? ये हमारे लिए इसलिए नाजिल की है। हमारे देखो, हमारे मुसलमान भाइयों को साफ बताया जा रहा है, ठीक है, बाकायदा उसके साथ कि तर्जुमे के साथ, मगर फिर भी लोग अमल नहीं करते। और अरबियों को देखो, अरबी देखो पढ़ते हैं कुरान, हर लफ्ज़ के साथ उनको पता होता है कि नबी की क्या कौन सा मकाम है, रसूल का, मोहम्मद का, ठीक है। ना पूछे वो भी नहीं करते, ना पूछे वो भी नहीं, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में हमारे अहले सुन्नत यहाँ हम जो फिर भी करते हैं, अरबी नहीं करते। आप तो नहीं पता, अरबियों ने अभी तो तबाही फेर दी है। अरबियों ने तो अभी लात मनात को जिंदा कर दिया है। वहाँ तो ये चल रहा है, ये छोड़ देंगे। फलस्तीन की जंग की वजह से मेरे भाई बड़ी खराबी हो गई है, ये बिल्कुल नहीं तवज्जो दे रहे। यही बात है ना, ये सारा एजेंडा भी मैं आपको बताऊं जो इस्लाम के खिलाफ अब खड़ा हुआ है ना, ये फलस्तीन की जंग में मुसलमानों को कमजोर करने के लिए खड़ा हुआ है। ये मलून बिठाए किस लिए? हमारी इससे पहले सारी तवज्जो होती थी फलस्तीन के ऊपर, ये हम डिवाइड हो गए अब, और इन्होंने ये फितना शुरू किया, कुछ आइडिया बना दिए हैं। अहले तशियों की वो गालियां दे रहे हैं जी साबियों को या खुलफा को, और कुछ आइडिया बना दिए हैं कि वो आले रसूल को गालियां। ये सारा तमाशा प्री प्लान हो रहा है, हमें पता है। इसलिए हमने ये काम किया कि हम आयतों से रसूल की, आले रसूल की, सहाबा की फजीलत बयान करें और इन्हें जूते मारें। हम इनके जो मुकदमा है उसे बेनकाब करें, ठीक है। मुसलमान को अपने इस तरह जीना चाहिए 200 दुश्मन की तमीज करके। लेकिन हम लोगों में अब गफलत, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी आई है ना, इसने बड़ा गर्क करके रख दिया है हमारी तहजीब का। लोगों को पता ही नहीं बच्चे स्मार्टफोन से क्या तरबियत याफ्ता हो रहे हैं। अब आप इसी टिकटॉक पे, जिसपे मैं और आप सब भाइयों के साथ बैठी हूँ, अब यहाँ क्या मौजू लगा है, हमारी एक दो बहनें मज़्ज़त और बैठी हैं, यहाँ हम कुरान की बात कर रहे हैं, रसूल के दुश्मनों की बात कर रहे हैं, उन्हें जवाब देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जरा घूमें इस शहर में, ये एक शहर की तरह ये प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, तो टिकटॉक पे आपको देखें तो आपको 95% गंदगी मिलेगी। मैच लगे हुए हैं, डांस किए हुए, वो जो औरतों की एक जगह होती थी खराब औरतों की, वो उठ के इन जगहों पे आ गई हैं। तो देखो ना मेरी बहन, ये जो यहूदी हैं, ठीक है, काफिर हैं, इन्होंने मुसलमानों को कैसे वरगलाना था, उन्होंने सियासती जो उन्होंने बरकरार रखी है, ठीक है, तो उन्होंने वो लोग कामयाब हो गए। वो कैसे कामयाब हो गए कि उन्होंने हमें मोबाइल दे दिए। अभी छोटे बड़े बच्चे जवान, अभी किसी की इज़्ज़त तमीज़ अदब नहीं है बात करने की। किसी को बात करो तो अच्छी बात करो तो साथ में डंडा भी देना चाहिए, क्योंकि वो आपको सर पे मारेगा। नहीं, उसमें यही है ना कि हमने थोड़ी, देखिए चीज को नहीं, जैसे आई थी ना ये टेक्नोलॉजी भाई मेरे,
जैसे ये आई थी ना, हमें अपने फोन बनाने चाहिए थे, जिसे हमें अपने बच्चों से दूर जो चीज रखनी थी वो दूर रखनी चाहिए थी। हमें सॉफ्टवेयर अपने, अभी आप देख लेना, आप कहते हैं आपके अरबाब इख्तियार जो है ना, आपके इदारे, उनमें गद्दार, बद किरदार, कौम फरोश, मुल्क फरोश, ईमान फरोश बैठे हुए हैं। ये बीबी मरियम ने अभी भी जो आपका इंटरनेट का किया है, इसने सारी ऑनलाइन जॉबों को इंडिया की तरफ रुख मोड़ने के लिए आपका इंटरनेट स्लो कर देती है, कभी बंद कर देती है, ताकि बैरूनी लोग तो इतना इंतजार नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, बिजनेस उठाएंगे, दूसरे मुल्क को दे देंगे। 2013 में भी इन्होंने एग्जैक्ट कंपनी पे हमला किया जो शेख अहमद की थी, उस पे हमला करके उसके कंप्यूटर उठा के उसे ब्लॉक कर दिया और बेंगलोर में सारा आईटी का बिजनेस इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये कमबख्त हिंदुइज्म काफर हमारे पर जब मुसल्लत हैं, तो हमारा ना माशरा महफूज है, ना हमारी माशरत, ना हमारी सकाफत, ना हमारा दीन महफूज है, कि बद किरदार लोग हमारे हुक्मरान बन बैठे हैं। इनकी वजह से ये कादिन, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की रियासत में एक रियासत रबवा क्यों बनी हुई है जी? वहां गैर अहमदी नहीं जा सकता, क्यों? उनके बाप का है। रबवा को उखाड़ा जाए ना, वहां देखो तो सही जाके करते क्या, जहां इन्होंने बच्चों से ज्यादती करने का एक अलग बनाए हुआ जगह। तो ये अगर ये आप समझे ना, इग्नोर कर दें, इन पे इस पे बात ना करें, तो ये तो गंद बनता रहेगा। जो मजलूम होगा, पैसे को ताकत जो समझ के जुल्म को बढ़ाते जा रहे हैं, इसे कहीं तो रुकना है ना। बिल्कुल। ताकत पैसा नहीं है, इल्म है। तो फिर हमें, कुरान से बड़ी ताकत किसके पास है? कुरान में बहुत बड़ी ताकत है, इसे सिर्फ देने वाला है वो। तो ये है कि इसमें गफलत नहीं की। जिन्होंने देखिए जो गलतियां की हैं, कमजोरियां की हैं, उनकी गलतियां अपनी जगह। मैं तो उस तरह की गलती ना करूं ना, मेरी निगाह से एक चीज गुजरी है, मुझे तो उस पर बात करनी है। बिल्कुल। आप देखिए कि जहां कुफर बिक रहा है, जहां गंदगी हो रही है, जहां हमारी तहजीब पे हमला हो रहा है, वहां 500 बंदा क्या ले रहा है वहां बैठा हुआ? मैं उससे पूछती हूँ। जितने कम अकल उनकी बराडों पे जाते हैं, ना कुरान जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, शर्मिंदा होने के लिए वहां चले जाते हैं। जी मोहम्मद नासिर साहब। जी जी बहन बोले। हाँ जी, ऐसे बैठे होते हैं वो जैसे बड़े हक पे हों खबीस। वाह वाह भी चले जी। पहले आप FH काजी आप बोलें जी, माइक ले लें। जी काजी साहब, ऐसा आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नासिर भाई, मोहम्मद नासिर आपसे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये है कि हमें कुरान से, आज मैंने सूरह सफा जो आयत लगाई हुई थी, कि आयत नंबर 8 मैंने लगाई थी, ये सूरह 14वां सूरह है, कि अल्लाह ताला कहता है ये लोग अपने मुंह से फूंके मार के मेरे अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं। अल्लाह तो अपना, अल्लाह का फैसला है, वो अपने नूर को फैला के रहेगा कि आखिर तक, यानी कि उसी का ही नूर रहेगा। तो इस तरह के कार्टून आते जाते रहेंगे। तो ये कौन ऐसा अल्लाह का नूर है जो फैला हुआ है, जो आखिर तक रहेगा? इसको देखने के लिए आपको सूरह रहमान पढ़नी पड़ेगी, जहां अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाले वल इकराम, वयब्का बाकी रहेगा, वजहु चेहरा, रब्बी का तुम्हारे रब का, जुल जलाले वल इकराम। अल्लाह का चेहरा कौन सा है? कोई चेहरा ऐसे है जिसे अल्लाह ने आखिर तक रखना, अपने से मनसूख किया। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह इनफाल में कहा, रसूल ये किंकरियां आपने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी। जैसे सूरह फतह में अल्लाह ने कहा, रसूल ये इन्होंने आपके हाथ पे बैत नहीं की, अल्लाह के हाथ पे बैत की। ये उसकी मर्जी, जिसको फर्जीरा हमारा काम मानना है। जिसने अल्लाह के बनाए को नहीं माना, वो ईमान में दाखिल हो ही नहीं सकता। झगड़ा अल्लाह के बनाए को मानने पर है, अल्लाह को मानने पे नहीं है। अल्लाह को तो हिंदू भी मानता है। वो कहता क्या है? कहता अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे ये बुत हैं। अच्छा जी, ये बुत है, कैसे पहुंचाएंगे? अल्लाह के हादी पे तो इल्म का नूर होता है, वो पहुंचाता है। इस पे क्या है? वो इसलिए कि ना ये अच्छा कहेंगे ना बुरा कहेंगे, हम चोरी भी कर लेंगे, जना भी कर लेंगे और दीन से माले गनीमत भी लूटते रहेंगे। इसी तरह इन जैसे लोग, ये बदबूदार, इन्होंने नबी बना लिया।
زناکاری یہ اپنے گھر میں کراتا تھا. ہر عیب اس میں وہ تھا کہ جسے قرآن نے حدود اللہ میں منع کیا ہوا. ہر بے حیائی اس کے منہ سے نکلتی تھی. نہ اسے اللہ کی کہتا ہے کہ بھی نجات کشتی ان کی کتاب ہے، میں آپ کو پیج نمبر دے دیتی ہوں. نجات نوح کشتی والیم 19 پیج نمبر 51. اللہ نے مجھ سے زیادتی کی، میں پریگنٹ ہو گیا اور 10 مہینوں کے بعد مجھ میں سے میں نکلا. What is that؟ جس نے اللہ کی شان کو نہ چھوڑا اس ملعون کے لیے کوئی جگہ باقی رہ جاتی ہے کہ اسے ٹارگٹ نہ کیا جائے، اسے جواب نہ دیا جائے. ہماری غفلت ہے کہ یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ظلم ہے کہ ان کے اپ ڈیٹ ورژن میں اور تماشے لگائے جا رہے ہیں. حکومت کہاں مری ہوئی ہے، مولوی کہاں مرے ہوئے ہیں. لیکن یہ سب جمود سے، عوام سے آتا ہے. اگر وہ غدار ہو گئے ہیں مال دنیا میں تو اللہ نے کہا ہے نا، ایمان جو بیچتے ہیں ان کے لیے جہنم کنفرم ہے. میری آیتوں کے عوض میں تھوڑی سی قیمت نہ لینا. اب جن لوگوں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے ٹک ٹاک کا، اسلام کے خلاف جو گالی گلوچ رسول کو، اللہ کو ہو رہی ہے، وہ اتنی اوپر جا رہے ہیں. ہم سمجھتے نہیں ہیں یہودیوں کو یہ پلیٹ فارم ہے، وہ کر رہے ہیں. ہمارے کیوں نہیں جاتے؟ ہم حق کی بات کریں، یہاں حق والے ہی آئیں گے. جی مامی شکر ہے جیتی رہے. آ گئی ٹائم تھوڑی دیر. اوکے، تو یہ میری بہن بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کا جواب دینا. حکمران نہیں کرتے تو نہ کریں. وہ کیا ہے؟ وہ کے تو دیکھو. دیکھتی ہوں بیٹا، تجھے جا کے چینج تو کر لے اسے رکھ. اوکے جا کے چینج کر. دیکھو میں دیکھ لیتی ہوں یہ کیا ہے. ایکٹ معذرت چاہتی ہوں، گر گئی تھی. جی جی قذاب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ chicken and اوکے جی میں آپ سے کیا کہتا ہوں کہ کیش واپس میں نے آپ کے یوز کیا تو اب $20 واپس میرے پاس کیش ہے. جی تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے، آیتوں سے بیان کرنا چاہیے. ہم رسول کی فضیلت بیان کریں تو قرآن سے کریں، اس ملعون کی کریں تو اس کی کتابوں سے کریں. اس لیے آپ کو ایپ دی ہے کہ ضیاء بھائی نے اچھا کام کیا ہے، ہم بھی ان کے اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور اسے آگے لے کے چلیں. یہ بے شرم لوگ شیعہ سنی کا فتنہ کر کے بیچ میں سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں موقع نہیں دیں گے. ضیاء بھائی نے اس میں بہت اچھا کام کیا اور اللہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ عمل کا، تمہارے عملوں کا، عمل صالحہ کا اللہ نے زور دیا. تو صرف ایک عمل صالحہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، باقی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس پہ اجر لکھا ہے. تو یہ میرا اور آپ کا ہے، آپ کو اور ہمیں اس پہ کام مل کے کرنا ہے. اپنی مصروفیت میں سے جتنا ٹائم جس سبحان تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے
میں اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتی تو میں اس کے سامنے کیسے جا کے کھڑی ہوں گی کہ میں نے کیا کیا دنیا میں. یہاں میں روٹی کماتی ہوں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. روٹی کھاتی ہوں تو کوئی حساب کتاب نہیں. حساب کتاب تو یہ ہے نا تو نے وقت کیسے گزارا. کیا صرف روٹی کمانے اور کھانے میں کیوں تجھے توکل نہیں تھا میں تجھے دیتا. تو آپ بھی اسی طرح سوچیں اپنے حصے کا کام کریں. ہم روزانہ یہاں بیٹھتے ہیں ایک آیت لگاتے ہیں رسول کی شان بیان کرتے ہیں اور اس ملعون کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بلکہ آپ ہماری براڈ کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انہیں یہ ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں بڑے اور لوگ جو بھی آپ کو بتا دوں جو قادیانیوں کی براڈ پہ جاتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے. کیوں میں نہیں کہتی. قرآن کی یہ آیت ہے کہ جہاں آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں مت بیٹھو نہیں تو تم بھی ان جیسے ہو. میں تو اس لیے ان کی جاتی نہیں. ان کی بکواس کو تھوڑا سا ریکارڈ کر کے لا کے انہیں میں جواب دے دیتی ہوں. اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے یہ ہماری براڈ پہ آتے نہیں. اپنی براڈ پہ کیوں بیٹھتے ہیں نیچے سے کمنٹس بند کر دیتے ہیں اوپر سے مائک پہ قبضہ کر لیتے ہیں اپنی بکواس شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو جواب لیتے نہیں. آپ لوگ صرف ایک کام کریں جب یہ قرآن سے بات کریں شٹ اپ کال دیں کہ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے. خبردار اپنی ناپاک زبانوں پہ قرآن تم نے پڑھا. پڑھنا ہے تو رخ جی السلام علیکم قاضی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کچھ کہنا چاہیے قاضی صاحب. نہیں سر میں سن رہا ہوں آپ لوگ کریں. آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں ان قادیانیوں کے بارے میں. بس ختم نبوت کے سپاہی ہے سمجھے ہم. نہیں قادیانیوں کی بک بک پہ آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں. میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے اور جیسا آپ بتا رہی ہیں ایسا ہوگا بالکل. آج ہی میں اس طرح کی براڈ پہ آیا ہوں مطلب صبح میں گیا تھا ایک تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی تصویر لگی ہوئی تھی یہ مرزا انجینئر کی لیکن پھر انہوں نے ایک وہ بلا لیا مطلب شیعہ وہ بلا لیا. یہ سارا انہی کا تماشا لگایا ہوا ہے. یہ کر رہے ہیں یہ گند ہمیں تو پتا ہے. اور نیچے جا کر پہ یہ وہاں کمنٹس بھی کرتے ہیں مستی بھی نکالتے ہیں مجھے تو پتا ہے. خدا انہیں غرق کرے ہر طرف سے. یعنی کہ اسلام کی توہین کا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا. میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں ٹیوشن پڑھتا تھا تو ایک سر تھے سلام الدین اسلام الدین تھے یا سلام دین تھے تو وہ کنورٹ ہوئے قادیانی میں. اچھا ان کی مطلب ہمیں تو وہ قادیانی ہوئے ہوئے ملے تو ان کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ جو ہے نا ایسے ہو گئے جیسے ویل چیئر پہ ہوتے تھے لیکن وہ ہاتھ بھی بالکل انگوٹھے سے پین پکڑتے تھے اور مطلب بالکل جیسے آڑے ٹیڑھے ہو جاتے نا اور فیس بھی لکھتے تو تھے لیکن وہ بالکل
बहुत गौर करके अजीब सी राइटिंग। तो उनके बारे में ये था कि कादियानी हुए, फिर इनकी ऐसी हालत हो गई थी। अच्छा, उनकी फैमिली में मतलब शादी के लिए हुए थे वो, तो उनकी अस्तगफुरुल्लाह। बीवी की एक बहन थी, वो मुसलमान थी, तो वो इतनी खूबसूरत, और बाकी जो बहनें कादियानी थी वो अजीब उनकी शक्लें हैं, अल्लाह माफ करे। लेकिन इनका एक बेटा था अजीजुल्लाह, बेटे तो उनके 4 थे। आप कभी देखिएगा कादियानी ना अजीज नाम बहुत रखते हैं। ये यहूदियों में ये वो नबी थे जिन्हें ना सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा है कि गधे के साथ इन्हें 100 साल मरे हुए रखा है। सूरह बकरा में जाए तो बड़े, जब अल्लाह ने इन्हें 100 साल बाद जिंदा किया था तो जिसे खुदा कहते थे, खुदा का बेटा कहते थे। ये यहूदियों में तो ये कादियानी उनका राइट हैंड है ना, इनमें आपको अजीज मिलेगा नाम। जी गो हेड, बोले आगे। अच्छा, तो वो मुझे जो है ना घर छोड़ने आता था, मतलब बेटा, और अपनी बातें बताने की कोशिश करता था। यानी कि पैदल पैदल हम आते थे, करीब ही घर था, जैसे भाई इतना दूर भी है, 6-7 मिनट की वॉक पे होगा। तो वो पैदल मुझे छोड़ने आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मजहब की बातें बताता था। ये जब की बात है, जब मतलब परवेज मुशर्रफ का भी बताया कि हमारा है ये, हमारा ही है ये, और ये वो बहुत बातें। परवेज मुशर्रफ ने ही तो काम ज्यादा खराब किया था। परवेज मुशर्रफ जो दाग बेग लगा, इससे पहले जो असलम बेग था वो भी कादियानी था। अच्छा, असलम बेग भी कादियानी था। इन्हें सारा बड़े बड़े ओहदों पे उन्होंने फौज, आपकी फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका पिक करता है, इसराइल पिक करता है, नीचे से जितने भी जूनियर से उठा के लगा देते हैं। और उनके कहने पर आपके, अब आप लोगों को ये होश करना अपनी पार्लियामेंट के वोट के लिहाज से, ये अभी देख लें कि इन्होंने इसराइल का साथ इसलिए नहीं दिया कि अमेरिका, ये इसराइल और अमेरिका को मान चुके हुए थे, और हमारे बच्चे 45,000 वहां जबा हो गए। इन्हें अल्लाह के घर तो देना पड़ेगा। अल्लाह इतना ही हिसाब लेता है जितना इख्तियार है, तो इन्हें तो जरूर इसका हिसाब किताब देना होगा। किसके साथ नहीं दिया, समझा नहीं है वाली बात आपकी। ये फलस्तीन का। अच्छा, हम किसने? तो पाकिस्तान ने, हमें तो फलस्तीन के साथ खड़ा होना था ना। अच्छा अच्छा, तो कितने पाकिस्तान ने ये साथ बगैर नहीं तो, दिया। हाँ ये तो इसराइल के साथ खड़े हो गए। इसराइल के साथ खड़े हैं तो खामोश है ना। 75 साल तो हमें ये सबक पढ़ाते रहे कि फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन हमारा भाई है, और अब कहाँ गैस निकल गई है, कहाँ निकल गई है। अच्छा, पहले ना डॉक्टर मीडिया पे बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी फलस्तीन की, अब तो नजर ही नहीं आते, बहुत कम। हाँ बिल्कुल वो चीज भी उन्होंने वो कर दी है। सिर्फ एक 92 का है यासिर, वो बहुत अच्छी खबर देता है, हर अपडेट देता है, और वो गुस्से में भी देता है, लान तान भी करता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये आजमाइश है इस दुनिया में, और जो जो आजमाइश में निकलता जाएगा रब की रजा पाता जाएगा। मैं जो इतना टाइम लगाती हूँ, अपना दिल जलाती हूँ, वाले मोहम्मद, अपना दिल जलाती हूँ, तो इसका यकीनन मकसद है यही है कि रब राजी सब राजी। दुनिया में क्या अजर लेना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो दुनिया का लालच रखते हैं ना, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। समझाइए। बिल्कुल। तो हमें तो दुनिया का लालच नहीं है, हमें तो आखिरत का ही है। रसूल राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। हमारे सामने ये हो रहा था, जहाँ फ़लस्तीन को, मैं फ़लस्तीन के भी बहुत चैनल चलाती, ब्रॉडिंग करती, पोस्टें बनाती, मैं बहुत एक्टिव थी। ये मैंने उनको देखते देखते मैंने देखा ये खबीस कहाँ से आ गए। उसमें से खान साहब के लिए काम करती थी, उनके लिए मैं पूरा पोस्टों पे बैठती रहती थी। और वो जब मैंने इन्हें देखा, ये क्या तूफान है, ये क्या चीज़ है, इस्लाम को, रसूल अलैहि को लान तान, ये क्या है, ये कादियानी अपना क्या सिक्का चमका रहे हैं। फिर मैंने अपनी बंदूकों का रुख मोड़ा
میں نے کہا ایمان کے لحاظ سے افضل ہے انہیں ٹھکانے لگانا. بس اللہ نے آپ کو پسند کیا تو اس کام میں چنا. آپ لوگ بھی کوشش کریں اور ہم چاہتے ہیں ہم آواز اٹھائیں. ان کی کتابوں میں اس ملعون کانے کو محمد کا اسم انہوں نے لگایا ہوا ہے، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا ہوا ہے. پلیز ڈیمانڈ کریں ایک آن لائن ہم اپلیکیشن ان قریب لانچ کریں. اگر آپ سب لوگ اسے ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ 30 40 لوگوں سے سائن کروا لیں گے تو سپریم کورٹ میں ان کی کتابوں سے یہ نام ہدف ہونے کے لیے ہم کیس دائر کریں اور ان کی اشاعت کو بند کریں. صحیح. مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ جو عزیز اللہ تھا نا اس کا سب سے چھوٹا بھائی تھا ظفر، ظفری کہتے تھے اس کو، تو گانے وانے گاتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ جمعے کی نماز میں یہ آیا اور جامع مسجد تھی حیدرآباد میں، تو حضور کی شان میں نا گستاخی کی اور بھاگ گیا. تو لوگ اس کو نا جان سے مارنے کے چکر میں، تو پھر بڑوں نے سمجھایا کہ یہ ایسے نہیں کرو. پھر جو ہے چندہ کر کے مولوی صاحب بلائے گئے ان کے گھر کے باہر. پھر انہوں نے بہت باتیں بتائیں قادیانیوں کے بارے میں کہ نبی نے کیا دعویٰ کیا. مطلب ان کے گھر کے باہر ہی وہ پروگرام ہوا تھا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ خبیث اذان میں اس کا نام لینا. اچھا یہ جو نام لیتے ہیں نا، کیونکہ آپ ان کی کتاب جا کے پڑھیں، حمامہ بشرا پڑھ لیں، روحانی خزائن پڑھ لیں. ابھی تو ہم نے جو ایپ کی اس میں آپ کو نا انہوں نے جگہ جگہ اس نے خبیث نے کہا یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، یہ میرے لیے اتری ہے. وہ آیت اصل میں رسول کے لیے بھی نہیں ہے، رسول کو صرف محمد رسول اللہ کر کے اللہ نے مخاطب کیا، اور باقی جو آیتیں ان کے ساتھیوں کے لیے کہ وہ کفار پہ شدہ ہیں، تشدد رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، اور جو آپس میں ہیں رحم دل ہیں مومنوں کے لیے. اور وہ رکوع اور سجدے کی وجہ سے ان کی نشانیوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے یہ فضائل تورات میں بھی لکھے ہیں، انجیل میں بھی، کہ یہ وہ ساتھی ہیں رسول کے، کہ رسول کی جب سے نبوت ہے، اعلان کو نہ دیکھیں کہ 40 سال بعد ہوا. جو تورات رسول، اگر ساتھیوں کا ذکر تورات میں انجیل میں پہلے سے ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو رسول بھی تو پہلے سے ہی ہوگا. ساتھی ان کی وجہ سے ساتھ ہے. تو یہ خبیث کہتا ہے یہ آیت میرے پہ ہے. میں نے کہا تیرے کون سے ساتھی، اور ان کے تشدد کو دیکھنا ہوگا تو آپ جنگ خندق دیکھو، خیبر دیکھو، احد دیکھو، بدر دیکھو، تو پتہ چلتا ہے تو خبیث تو نے کیا کیا. تو بہرحال اب میں روزانہ اس ٹائم میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی کہیں گے کہ التماس کریں گے کہ آپ لوگ اپنی سوچ کے مطابق اور اس ایپ کو پڑھیں اور ان کو جواب دیں. کم از کم پوسٹنگ بھائی ایک ایک ہی بنا دو، دو پوسٹنگ بنا کے دن کے ڈال دیا کرو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درود چراتے ہیں، نام چراتے ہیں، یہ ملعون ہے. تو یہ جو آپ کو دکھاتے ہیں نا کہ جی ہمارا کلمہ وہی ہے، تو کلمے میں تو تم اس ملعون کو دیتے ہو محمد کا نام، اذان میں تم اس ملعون کو محمد کا نام دیتے ہو. جی تو اس لیے آپ لوگوں سے میری التماس ہی ہو سکتی ہے، رسول کے لیے ہمیں التماس کرنی پڑے، جتنا بھی جھکنا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اللہ جزائے خیر دے. دیکھیں یہ کل آپ کے اگر ہم لوگ کوشش آج اس فتنے کو اپنی زندگیوں میں ختم کرنے کا نہیں کریں گے اور کمیشن نہیں چھوڑ جائیں گے، کل ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا. بالکل جی بالکل. کیونکہ آپ اور جب میں بڑی ہو رہی تھی نا تو ہمارے وقت یہ شیطان کا لاؤڈ اسپیکر، سوشل میڈیا نہیں تھا، سمارٹ فون نہیں تھا. اب تو گھر گھر شیطان پہنچ گیا ہے. تو اس لیے ہم نے تو پھر بھی دین لے لیا، اب کیا کریں.
अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारे बच्चों की। जी, बस सबसे पहले जी आप बच्चों को ज़रा सोशल मीडिया से दूर रखें, तरीके से उन्हें समझाएं, गैर ज़रूरी फ़ोन के इस्तेमाल से उन्हें बचाएं, और ऊपर से फिर इन एजेंडों से ये सारे तमाशे, ये सोशल मीडिया लॉन्च किया ही गया हमारे ख़िलाफ़ है, हम इनकी बंदूक पकड़ के इन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा कमाल ये है, हाँ जी, हम इधर से रसूल की फजीलत बताएंगे, इधर से ख़त्म नबूवत बताएंगे, हम इन्हें इन्हीं की बंदूक से ठोक के रखेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा वैसे पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि देखें, अब अगर हम इस चीज़ को देखें कि टिकटॉक जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का कि जिस पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अक्सर इधर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो वो अगर लाइफ पे अगर आकर ये चीज़ें अगर देखेंगे तो अल्लाह करे उनका जो दिमाग है वो कहाँ किस तरफ मतलब कैरी करेगा। तो इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म को ही टारगेट किया है, वरना आने को तो अगर ये इतने बड़े बड़े दावे हैं तो ये आके टीवी पे क्यों नहीं करते, सेटेलाइट पे क्यों नहीं आते, उनको पता है। तो बस इसी के लिए हम लोग हैं, तो हम लोग रोज़ाना यहाँ बैठते हैं। अगर आप लोग अपना थोड़ा टाइम दे के अपडेट हमसे सुना करें और उसमें अपने व्यू दिया करें या अपनी तरफ से पोस्ट बना लें, उस ऐप को यूज़ कर लें, तो इल्तमास करते हैं कि आप लोग भी इस जज़ाए खैर में अपना हिस्सा डालें। बहुत अच्छा है। मेरी बहुत ब्रॉड पे आने का आपको एक पता चलेगा, आपको तारीख भी पता चलेगी, आपको कुरान की आयत की तवील भी पता चलेगी। जिसे आप कुरान खोल के, मैं मुझे नहीं पता कि आपका टाइम जोन बहन कौन सा है। नहीं, हम पाकिस्तान में है ना, तो यहाँ पे तो 8:30 है। हाँ, तो ये अच्छा, अभी आपके 8:30 तकरीबन 2 बजे के बाद हमारी ब्रॉड होती है। यानी कि पाकिस्तान में रात के 2 बजे ऐसे। टाइम फर्क है ना हमारा, इस वजह से मेरी बहन। सही सही। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे आप मुझे नजर आएंगी मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। मैं आपको फॉलो बैक का दे देती हूँ ताकि आपको वो मिल जाएगी। हाँ, मैंने किया है। सलाम का मैं भेज देती हूँ आपको मैसेज। कहाँ रहती हैं आप? मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, यूरोप कंट्री में, तो हमारा आपका दिन रात का फर्क आता है उसमें। आप कहाँ से डॉक्टर साहब? जी मैं यूएसए से। अच्छा, बिल्कुल, हमारी सिस्टर भी यूएसए से। जी जी, मैंने कहा जो हमारी होस्ट हमारी सिस्टर जो है वो भी यूएसए से ही है। अच्छा, मैं और बाकी तो पाकिस्तान से। आप कौन सी स्टेट से हैं? मैं फ्लोरिडा से, अच्छा, फ्लोरिडा, ऑरलैंडो। ऑरलैंडो, ओके। आपके लिए तो फिर इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आपका टाइम जोन तो हमारे साथ मिलता है ना। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। आज मैं गया नहीं, वैसे 10 बजे जाता हूँ मैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं बास भाई? मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप ही ना वो प्लीज अवॉइड किया करें स्टेट्स के नाम पूछने या बताने से ना अच्छा। ऑनलाइन। मैं प्लीज मैं सुन बड़ी बड़ी नवाज़। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू कीजिए आप। अच्छा, क्या वजह है इसकी सर? उसकी वजह ये भाई नीचे, क्योंकि हम लोग कादियानियों के साथ कहीं पाकिस्तान के साथ लड़े होते हैं ना, तो नीचे से ये डेटा वगैरह लेते हैं टारगेट करने के लिए। नीचे से मतलब? नीचे ये नहीं पता कि बैठा था ना, सबके आपके व्यू जो देने वाले व्यूअर होते हैं। हमने खास तौर पे खान साहब को जब किया ना, खान साहब के लिए काम किया तो बड़ा हमें नुकसान हुआ इस चीज का, हमें तो पता है। अच्छा, वो ठीक बात है। एस्टेब्लिशमेंट के बंदे, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे बैठे होते थे, हमें पता नहीं चलता।
बहरहाल खान साहब के तो फेवर में नहीं हूँ मैं, हर एक की अपनी मर्जी है। अपनी आपका मुझे उससे नहीं है कि, लेकिन हमने तो अपने खान इदारों साहब ने भी तो इनके लिए आप रोड जब बना फेवर दी थी। नहीं 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 छोड़ दें, आपको हकीकत नहीं पता, छोड़ दें प्लीज इस चीज को। ये सारा कांस वही है। खान साहब अपनी कौम के साथ सगे थे, ये सस्ती गंदम ले रहे थे, उन्होंने उतारा गया, रशिया गए थे, तो वो क्या कर रहे थे खान साहब? खान साहब के काम से हम देखते हैं, खान साहब ने 3 कैंसर के हॉस्पिटल बना दिए, यानी एक रोड बनाई उसे नजर आ रही है, 3 कैंसर के हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहे, 3 यूनिवर्सिटियां नजर नहीं आ रही। खान साहब ने कहा मैं अपनी बेसे नहीं दूंगा, मेरे 80,000 बंदे तुमने मारे हैं अफवाज जंग में, अब मैं एक बंदा नहीं मरने दूंगा, वो किसी को नहीं नजर आ रहा। ठीक है, मैंने तो कहा इस कौम पे अजाब आएगा, ये ठीक होगी, इससे तब अल्लाह की नेमत का अंदाजा होगा। खान 75 साल में पहला बंदा था जो अपनी कौम की आवाज बना। जिस शख्स ने कहा मैंने 15 साल अगर यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ाना है कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी दो मेरे मुल्क में, और उसने निमल बनवा कर नौकरी की, उसने आज तक उनसे तनख्वाह नहीं ली। उसने कहा था मेरे बच्चों के लिए ऐसी यूनिवर्सिटी दो। और कौम फेवर किन्हें दे रही है? जो बाहर उठा उठा के अपने असासे बना रहे हैं। खान साहब का कोई एक 10 गज का अपार्टमेंट बाहर निकाल दे, जो चोर की सजा हम देंगे, हम खान को मानना छोड़ देंगे। हमने इस शख्स की ईमानदारी को देखा, इसने हमसे फंडिंग लेकर जितना शौकत खान पे बड़ा ट्रांसपेरेंट काम किया, आज तक हम इसके साथ खड़े हैं। हमारे बच्चे वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, अल्लाह ताला जो इसको फंडिंग कर रहे हैं उन्हें भी अजर दे रहा है, और जिसने बनाया उसे भी दे। चले वो खान साहब इस बात को खत्म करते हैं, जी कहने जी को बहुत कुछ है मेरे पास भी, लेकिन जी हमारे पास देखने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान में 3 मरतबा खबीस नवाज शरीफ आया, बाहर उसके सासे देखे हैं, बल्कि बाहर मैं उस वक्त दुबई में थी तो बाहर इसने अपनी कंपनी के बाहर बोर्ड लगाया था यहाँ पाकिस्तानियों के लिए जगह नहीं है। हमने बहुत कुछ देखा है। हमसे पूछे इस वक्त मुशर्रफ की जदाद कहाँ है, हमसे पूछे इस वक्त असलम बेग की जदाद कहाँ है, हमसे पूछे जो आसिफ जंजुआ है उस ब्रिगेडियर उसकी कहाँ, जनरल था उसकी कहाँ है, हमसे पूछे कियानी की जदाद बाहर ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है। हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट है, नेविगेशन करके देंगे। ये बेगैरत बड़ा बजट खाने वाले कौम की हड्डियों से गूदा खा गए और बाहर जाके सासे बनाते हैं। और बनाओ बेगैरतों खान की तरह पाकिस्तान में तो लेबर पैदा होगी, कौम को नौकरियां मिलेंगी, और बेगैरतों लूट लूट के बाहर बनाते हो। ये पैसा जब बाहर फैक्ट्रियां लगाते हो लेबर भी उन्हें मिलती है, पैसा भी वहां रहता है। जब तुम कब्रों में कुत्तों की तरह मर जाओगे ये कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन ये इस गरीब अवाम का था जो बेगैरत लगाते हैं बाहर बोर्ड कि इस पार्क में सिविलियन नहीं आ सकते। ये आर्मी वालों का, आर्मी वालों की माएं अपने जहेजों में लाई थी। हम बड़े दुखे बैठे हुए इन इदारों से, इन्हें सीख पा करके रखेंगे। तो इदारे तो देखें, एक 2 साल एक इदारा एक को सपोर्ट कर रहा होता है, फिर वो एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, यहां भी आप गलत ही बोलेंगे। नवाज शरीफ बाहर से कौन लेकर आया? ये नवाज शरीफ ने, खान साहब ने जेल में नहीं थे, अपनी हुकूमत में था, उसने कहा था किसी चोर के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसने हुकूमत जाने दी, ना जरदारी के साथ मिलाया, ना नवाज शरीफ के साथ, ना MQM के साथ। आज इतनी तकलीफ में है, किसी इदारे के साथ नहीं, किसी हुकूमत में नहीं बैठ रहा। मर्द का बच्चा है, किसी अच्छी माँ की औलाद है, माँ से होती है। अब ये जो गडवी बजाने वाली थी वो नवाज शरीफ ही पैदा कर सकती थी ना, या वो जो रक्कासा थी भट्टो की, वो यही कुछ औलाद उनकी नामर्द किस्म की हो सकती थी ना, और क्या हो सकती थी। या वो जो कायदे आजम को काफिर कहता था हाकिम जरदारी, उसमें से ये आसिफ जरदारी ही निकल सकता था ना, गंदा अंडा। तारीख पड़ी हुई है, तारीख बड़ी तल्ख है। इलामा इकबाल की मेहनत को पूरे एजुकेशन सिस्टम से निकाल के किसने बाहर फेंका? खान ने फेंका। खान की तो बड़ी अच्छी तकरीर है। खान ने कहा था जब खत्म नबूवत कुरान में है, मुझे तो ये समझ नहीं आई 30 पे बहस क्यों है। वो ईमान ही नहीं रखता जो खत्म नबूवत पे बहस करता है। और इस कुत्ते बेगैरत गडवी बजाने वाले की बेटे ने, नवाज शरीफ ने 2013 की हुकूमत में पार्लियामेंटेरियन के हलफ से खत्म नबूवत निकाल दिया। क्या बात आप करते हैं? जिसकी बेटी बेगैरत अभी इंटरनेट बंद कर करके सारा IT का उसने बिजनेस जो है इंडिया को दे दिया। 13 में भी इन्होंने यही काम किया था।
शेख अहमद की आईटी की एग्जैक्ट को बंद करके बेंगलोर सारा बिजनेस दे दिया था। हिंदुओं की नस्लें हैं। खान कम से कम पाकिस्तानी है, उसका एक घर बर्बाद किया, दूसरा इन्होंने बर्बाद किया। वो मर्द इंसान है, अपनी जबान पे कायम रहने वाला बंदा है। जितना हम लोग उसे फंडिंग करते थे, वो इन बेगैरतों की सब की जितनी जताते हैं ना, खान की अकेले की इतनी होती। उसका 1-2 गज का अपार्टमेंट नहीं किसी मुल्क में, जो था बेच बट के पाकिस्तान जा बैठा कि अपने मुल्क के लिए करूं। और ये बेगैरत आते हैं, हुकूमतें करते हैं, पैसा लूटते हैं, बाहर जाके बनाते हैं। और वो कौम कितनी अंधी है, वो अफराद कितने बेजमीरे हैं जिन्हें ये नजर ही नहीं आता कि भाई तुम लोगों ने लूटा वहां से, हुकूमतें वहां करते हो, फैक्ट्रियां यहां लगाते हो, बेगार तो पाकिस्तान की फैक्ट्रियां बंद करते हो। खान साहब की हुकूमत में इतनी फैक्ट्रियां चल रही थी, एक मुलाजिम नहीं मिलता था। किसान इतना खुशहाल था, और बीबी कह रही है किसान जो है दहशतगर्द है। मरियम नवाज कहती है किसान दहशतगर्द है। हमने तो खुली आंखों किसान से जाके पूछो कि किस तरह 2-2 हाथों से दुआएं देता है खान को। इतना खुद कफील उन्हें कर दिया था, उन्हें कार्ड दे दिया था कैश कि तुम्हें खाद के लिए, किसी चीज के लिए तुम्हें मकरूज ना होना पड़े। उन्होंने कहा था किसान कौम की मां होते हैं, और ये बेगैरत औरत कहती है दहशतगर्द हैं किसान। क्या बात भाई आप करते हैं। होश करें, होश करें। आप जालिमों के हाथों में अपनी नस्लें छोड़ रहे मैडम हैं। बहस कर ही नहीं रहा, मैं तो आप कर रही है, सुन रहे हैं। मैं तो आपको सिर्फ जिखा रही हूँ भाई। 3 बार का ये गंद इनका है, और उन्होंने सिंध जब से लिया हुआ है, कितने अल्लाह सबको अक्लमंद है। हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। इलाही आमीन। लेकिन इनकी वजह से, क्योंकि मेरी कौम इस वक्त सफर कर रही है मेरे भाई, आपको पता है इनकी अभी पिछली हुकूमत में देखे 3-4 मरतबा बिजली के नरखे बढ़ चुके हैं, बिलों में कोरोना है। और ये 2 के 4 हफ्ते पहले कह रहे थे हम इंडिया को सस्ती बिजली देंगे, हैं यहां तो तुम दे नहीं रहे हो। और शहबाज शरीफ कह रहा है सस्ती बिजली का मुआहदा करेंगे इंडिया से। देखें मैडम, अगर मुझे बोलना पड़ रहा है कि किसके दौर में कितनी बिजली बनी और IMF से किसके दौर में क्या मायदे हुए, ये चीज आप देखेंगी ना तो आपको और मेरे भाई हम लोग बीच स्क्रीन के, आप हमें क्या बात करते हैं। खान साहब ने तो 29 जो है ना अरब के वापस कर दिए थे कर्जे, कर्जा ही नीचे आ गया था। क्या बात कर रहे हैं आप लोग चौपालों वाली सियासत करते हैं। आप लोगों को अंदाजा ही नहीं, जो इंटरनेशनल इदारों ने खान साहब की हुकूमत के दिए, आंखें खोल के जाके ऑनलाइन पे अभी भी देखे, वो हम नहीं कह रहे, वो IMF कह रही है, वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है। आप लोग तो हंसी में चौपालों वाली सियासत करते हैं। हम तो जो इंटरनेशनल इदारों ने की बात की है, हम तो वो करते हैं। कराची से मेरा ताल्लुक है, ना मैं किसी पार्टी में आज तक गया हूँ ना रहा हूँ, बल्कि मैं वो इंसान हूँ कि कराची में रहते हुए मैंने कभी खाल MQM को नहीं दी। आपको यकीन नहीं आएगा, क्या पता आपको माहौल पता भी ना हो। मेरे भाई मुझे ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी के, हमें ये नहीं ना, हम अपनी पार्टी का कहते हैं। हम देखते हैं किसी ने, अल्लाह ने कहा रोजे क़यामत में तुम्हारा अमाल नामा देखूंगा। हमने इमरान खान का आपने जो नॉलेज ली है आप उसको सही समझ रही है। नहीं, मैंने सच तो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, ठीक है। मैंने वही, हमने डेटा तो सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है ना, और कोई खान साहब के इदारों का नहीं है। आपकी अपनी हुकूमत, उसने खुद ये रिपोर्ट जो पिछले साल दी है कि जो खान साहब की हुकूमत में थी ग्रोथ वो 6% थी, आज क्या है -0 है। कमाल बात आप करें। जो शहबाज शरीफ की हुकूमत दे रही है नरखे, वो तो देखें। खान साहब 150 रुपए लीटर देते थे, 400 रुपए ऊपर गया पेट्रोल। और खान तो वो था जिसने कोविड में बड़ी बड़ी मशीयतें जमीन पे लग गई, खान ने अपने लोगों को 14-14 हजार रुपया दिया था, और फिर भी मशीयत बचा ली थी। चले अल्लाह ने चाहा तो हकीकत वाज़ेह होगी, वक्त जो है इंशाल्लाह जरूर होगी। ये थोड़ी हकीकत वाज़ेह है कि जितना उसे जलील करना चाहते हैं डबल जलील होते हैं। उसे अल्लाह ने ऐसे साफ कपड़े पहनाए, ईमानदारी की कीमत अल्लाह के नजदीक बहुत है, बंदे की हो ना हो। जो शख्स 15 साल गोरों को पढ़ाता रहा इस अहद पे कि मेरे मुल्क में यूनिवर्सिटी दो, मैं तनहा नहीं लेता, कमाल कर रहे हैं। वो बंदा इस कौम से खयानत करेगा, और उन्होंने कहा इसे रोक लो।
یہی کام کا ہے. جو اپنی قوم کا سوچ رہا ہے وہ ہمارے یونیورسٹی کا کتنا سوچے گا. سنی سنائی یہ کہتے ہیں. اسی لیے آپ لوگ دین بھی برباد ہے. اس جیسے نکھٹو لوٹے دین کو بھی برباد, کیونکہ آپ نے آنکھوں سے کبھی عقل سے کام نہیں لیتے. پاکستانی قوم کا یہ خاصہ ہے, سنی سنائی بات. میرے والد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے, اللہ کرو جنا, کہتے ہیں اس ملک کو کھا گئی ہے چوپالوں کی سیاست. کہتے ہیں اس ملک کو چوپالوں کی سیاست کھا گئی. جسے نہیں بھی پتا نا, جو اپنا گھر رن نہیں کر سکتا, جسے اپنے بچوں کی نیچر کا نہیں پتا, وہ پارٹیوں پہ بات کر کے کہ انہوں نے فساد فتنے کھڑے کیے ہوئے. ان سے پوچھو میں نے کسی پارٹی کی ابھی تک کوئی میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں آپ کی بات نہیں کر, میں جنرل بات کر رہی. جبکہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو جنرل ہوتی ہے, اور ایسا ہے. اور وہ کئی براڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تحفے, یہی جی گالی گلوچ لگے ہوئے خان صاحب کے لیے. اور تم یہ بتاؤ نواز شریف نے تمہارے لیے کیا کیا ہے, صرف مجھے یہ بتا دو. وہ مجھے وہ ہمیں بھی قدر ہو, آخر ہے تو پاکستانی نا, تو کوئی ہمیں بھی تو قدر ہو, اس بندے نے یہ ہمارے لیے کام کیا ہے. زرداری کا بتا دو, دو جب سے بڑی بھٹو سے گانے کا جو بھی جتنی بار انہوں نے سندھ کو سنبھالا ہے, میں بتاؤ کیا کیا ہے. سندھ کا پانی ختم کر دیا, لوٹ مار چکور وہاں, جہاں ایم کیو ایم نے قتل عام کیا ہے. میں بتاؤ کیا ہے. خان کی فنگر پہ کسی کا قتل نہیں ہے. نواز شریف قاتلوں کا گروپ جو راستے میں آئے, جو ان کی اشرف شریف کو قتل کروانے والے, جو زرداری پاکستان, جو اس نے سندھ میں قتل خانہ کیا, ایم کیو ایم ڈاکوؤں قاتلوں کی جماعت. خان صاحب نے تو کبھی کسی کے قتل کی, کسی کو غنڈہ گردی کی, کبھی اس بندے نے بات ہی نہیں کی. صاف کپڑے ہیں اس کے. اور ہر بار جب کال دیتا تھا, ماشاءاللہ آپ ان لوگوں سے سنیں گے, بزدل ہے واپس کال لے رہی, وہ کہتا تھا میرے لوگ نہ مرے. ہمیشہ وہ کہتا تھا دھنگا فساد نہ ہو, اجتناب کرتا تھا. کال دے کے واپس لے لیتا تھا, کہتے تھے نہیں. اگر کال واپس لیتا تھا کہتے رہے ڈر گئے, اگر کال دیتا تھا تو کہتے ہیں دہشت گرد. او خبیث کے بچوں, کہیں تو کھڑے ہو جاؤ تم لوگ. اللہ سے ڈرو. اللہ ہر انسان کے کردار کے مطابق اسے دیتا ہے, اس کے عمل کے مطابق دیتا ہے. وہ ارادوں سے واقف ہے. ابھی تو آپ نے ایک دیکھا نہیں, ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بچی لانچ کی ہے حجاب میں, لگتی تو وہ ہے کہ وہ حفظہ, وہ جو مدرسہ ہے اس کی ہے, پر وہ کہتی ہے میں ٹرمپ کی بیٹی ہوں, میں ٹرمپ کی اصل بیٹی ہوں, لوگ پریشان ہوں گے میں یہاں کیوں آ گئی ہوں. وہ اس لیے میں نے کہا اب یہ ٹرمپ کو بھی نا اہل اس کی ناجائز اولاد کرنا ہے. یہاں ناجائز اولادوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, یہاں کوئی تمہارا یہ ڈنڈی نہیں چلے گی. وہاں بھی اس نے کہہ دیا او یہ میں ٹرمپ کی بیٹی ہوں, انہوں نے ٹرمپ کی ناجائز اولاد پر رہتی وہ پاکستان میں. اور وہ قسم اٹھا کے بول ٹی وی, جیو ٹی وی, سارے اس کے آگے مائک رکھے ہوئے. او خوف خدا کا, جائیں میری سائڈ پہ دیکھیں. حد ہے نا بے شرمی کی. ابھی ٹرمپ کی بیٹی, ٹرمپ نے تو عمران خان کی سپورٹ کی ہے, حمایت کی ہے نا. نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہی, وہ ٹرمپ کی بیٹی اس لیے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سوٹ کر رہا, وہ ٹرمپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ٹرمپ کی ناجائز اولاد نکال دی ہے پاکستان میں. ٹرمپ ان کی مبارکباد لینے سے انکار کر دیا. تم نالا ہیلو. ہمارے لوگوں کا جو کام ہے نا, جھوٹے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو بس جھوٹے ایجنڈے ہی کرتی ہے, کہانیاں اسٹوریاں لالے کہ وہ نکالتی رہتی ہے. وہ انہوں نے ٹرمپ کی بیٹی کا بھی ایک نکال دیا ہے, لو جی ٹرمپ کی یہ بھی بیٹی ہے. خان کی بھی تو نکالی تھی انہوں نے, یہ بھی نکال دی ایک. میں نے کہا پر ادھر تو ناجائز جائز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, انہیں خود نہیں پتا, ٹرمپ کو اپنا نہیں پتا وہ جائز ہے کہ ناجائز. خان کی بیٹی اگر نکالی تھی تو اس کو خان کے بھائی بیٹوں کے ساتھ ہی بڑی ہوئی نا وہ. بھئی یہاں کا یہ کلچر ہے, یہ جو بھی انہوں نے کہے یہاں کا یہ کلچر ہے.
खान की जो मौलवी बच्चों के साथ मस्जिद में बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, वो बिस्मिल्लाह करके करते हैं, सबसे नजिस काम है। उस मौलवी का तो कोई गला नहीं उतारता, उसे तो कोई मस्जिद से अलग नहीं करता। जो इतनी तो गलत मुसलमान करता है वो गलत है। जी, ये तो मेजोरिटी में होता है। कौन गलत कहता है, कौन सही कहता है? जिसको टारगेट करना होता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसे कहते हैं। कौन कहता है? किसी मौलवी को, आज खान साहब ने एक मौलवी को जेल में डलवाया था जो बच्चे के साथ ज्यादती करती, उसकी वीडियो आई थी, इन्होंने आके उसे निकाल दिया। अच्छा, खान साहब ने कहा था कि जो भी बच्चे के साथ ज्यादती करे उसका प्राइवेट पार्ट काट के उसे लटकाओ चौराहे में। खान ने तो ये कानून पास कर दिया था। इन बेगैरतों ने रुकावट की थी ये कानून ना पास हो, क्योंकि ये सारे करते हैं। उसके हाथ साफ हैं। जिसके हाथ साफ हो ना, उसे कानून बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं। इन्हें क्या मुश्किल थी? इन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबके हाथ इस गलाजत में रंगे हुए। अभी जो स्कूल की बच्ची के साथ हुआ है, मरियम का दामाद बीच में इन्वॉल्व है। ऐसी तो कोई बच्ची मिली नहीं, न्यूज वालों को नहीं मिली। और न्यूज वालों को कैसे मिलेंगी? न्यूज वालों के तो सारा जो न्यूज चैनल है वो ही कंट्रोल हुआ है। न्यूज वालों ने मरना है, हर वक्त की बंदूकें दानी हुई हैं वहां। कौन सी न्यूज की आप बात कर रहे हैं? CNN की आप बात कर रहे हैं कि आप BBC की बात कर रहे हैं? कौन सी न्यूज की आप बात कर रहे हैं? ठोक ठोक के पिछले, जब से खान की हुकूमत गई है, पूरे मीडिया को ठोपा है। जो नहीं इनकी आया उसे मार दिया इन्होंने। पाकिस्तानियों, तुम लोग आंखों से काम नहीं लेते हो या अकल से काम नहीं लेते हो? अरशद शरीफ का क्या हाल हुआ? इमरान रियाज का क्या हाल हुआ? आजकल उस बेचारे की जान फंसी हुई है, असद तूर की फंसी हुई है, वो जान करके एक आता है उसकी फंसी हुई है। क्या बात करते हैं? कितने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया। अभी भी तुम लोगों की आंखें काम नहीं करती, या खुद बेवकूफ बनते हो या दूसरों को बनाते हो। पर हम तो अपनी आंखों से ज्यादा काम लेते हैं। हमारी कब्र में इन खबीस लोगों ने थोड़ी जाना है। बस आप कह रही हैं, सुन रही हैं। भाई हमारी तो हमारी रूह भी इन्हें बददवा देती है, क्योंकि हमने अल्लाह का शुक्र किया था। खान साहबा हुक्मरान आया था, पहिए फैक्ट्रियों के चलने लगे थे, मजदूरों को नौकरी मिल रही थी, हम खुश थे। हम लोग आप लोगों से नहीं सुनते थे, आपके घटिया फिक्स मीडिया से हम नहीं सुनते थे, हम इंटरनेशनल न्यूज सुनते थे। खान की हुकूमत की तरक्की के चर्चे बाहर थे। जो इन्हें कर्जे में फंसाते हैं वो दे रहे थे कि कितना खान ने कर्जा वापस कर दिया। अभी उन्होंने ही जो दिया है, जो खान के दौर में जो आपका आया था, पाकिस्तान गुर्बत और क्राइम के लिहाज से किस नंबर पे था जाके देखें, और आज किस पे है। शरीफों की हुकूमत आई, बदमाशी की इंतहा हो गई। जिसे बदमाश कहते थे उसे दुनिया ने बता दिया कि यही शरीफ है। मैडम, टॉपिक से हट गए हम थोड़ा सा। जी बिल्कुल, यकीनन हट गया। आपने बात ही की तो क्या करेंगे। वैसे मैंने खान साहब के लिए मैंने काम किया, वो भी मुझे पता था। और अरशद भाई का जब कत्ल हुआ था तो फिर हम लोगों ने सही अपनी बंदूकें इनके ऊपर की थी। हमारा भाई था, उसने कौम के लिए आवाज उठाई थी। आज भी अरशद भाई को सलाम है। अरशद भाई का तो मुझे भी दुख है, लेकिन आप देखेंगे ना कि तो उसको किसने बाहर भेजा और किसने ये आप मुझे नून लीग की जबान ना भेजें। किसको बचने के लिए सबके यही था उस वक्त बाहर। खान साहब ने किसी अपने घर के, उसे ये देखें दुबई से किसने गवर्नमेंट का लेटर लिखवा के निकलवाया। वो तो बेचारा दुबई में रह रहा था, उसे करोबी का किसने जबरदस्ती धिक्का वहां दिया। यहां तो आया था, खान साहब ने कहा था जान बचाने के लिए, किसने भेजा? खान साहब ने अपने घर में नहीं भेजा था, दुबई चला गया था, दुबई रह रहा था। उस वक्त के उल्लू के पट्टे वजीर खारजा बिलावल ने सिग्नेचर किए, इसे यहां से निकालो, और उसके पीछे बंदे लगाए, उसे करोबी में लेकर गए। करोबी में देखें जरा निशाना लगाने वाली किसकी फैक्ट्रियां हैं वहां। जो है ARY के मालिक ने 2 भाइयों के पास भेजा था, दुबई भी उसको उसने भेजा था क्योंकि वो उनके पास नौकरी कर रहा था। मेरे भाई एक मिनट आपको यहाँ भी दुरुस्तगी आपको तो ठीक करवा दूं कि उसे भेजा था, लेकिन एक मिनट आपकी सारी बातें उस पे इतने केस ना तो सलमान ने बनवाए थे,
ना खान ने बनवाए थे। अरशद शरीफ पे ये केसों की भरमार किसने बनाई थी? अरशद शरीफ एक मासूम सा बंदा अपनी नौकरी करता था, सिर्फ वो क्लियर बोलता था, चोरों को बेनकाब करता था, उनकी चोरी को बेनकाब करता था। एक केस उस पे केस बना दिए थे, उसे घर से उठाया गया था। घरों में घुस के जो बेगैरत वर्दी वाले कौम की बेटियों को घरों से उठाते हैं, बेगैरत इसराइल के लिए निकल ना सके, इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मदद को, बेगैरत इंडिया के सामने भी अपनी पतलूने उतार देते हैं 90,000 के 90,000 और अपने ये बात आपने फलस्तीन। एक बात बिल्कुल सही कही है, इतनी बातों। स्टोरी मेरे भाई कभी दरमियान में से या ऊपर से खराब नहीं होती। जो स्टोरी ऊपर से हो ना, नीचे एंड तक उसका नतीजा लिखने वाला राइटर एक ही होता है। जब सोच आपकी पॉजिटिव हो तो नतीजा भी पॉजिटिव ही होता है। जी ये इदारा पूरे मुल्क को खराब कर रहा है, सियासतदानों को बेराह करने में इस इदारे का हाथ है। आज जो भी है नवाज शरीफ इसे पालने वाला, ये फौज की नर्सरी में पला है। इसने फौज को क्राइम करते देखा है, इसने फौज से क्राइम सीखा है। आपको दुख नहीं होता जब आपके बच्चे पार्क में जाएं पाकिस्तान से और उन्हें बाहर लिखा मिले कि ये फौजियों के बच्चों के लिए, सिविलियन के लिए? दुख नहीं होगा? उस दिन वर्दी को आपको आग लगा देनी हमारी चाहिए। तो मैंने तो काफी टाइम से न्यूज़ देखने ही छोड़ दी थी कि दिल खराब होता था। जितना अच्छा सोचो इतनी अपनी तबीयत खराब होती है। तो आंखें बंद करने से लेकिन मेरे भाई मुसीबत टल नहीं जाती। नहीं, हर कोई लूटने के लिए आ रहा है ना वहां पर, तो क्या अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। जिस दिन कौम को ये गैरत आ गई ना, कौम की गैरत, असल में मसला ये है कौम की गैरत नहीं जाग रही। वो दो रोटी के चक्कर से बाहर ही नहीं निकल रही। मैं तो अपनी दो रोटी कमानी थी, दो रोटी खानी है, मैं अपनी दो रोटी कमानी थी, दो रोटी। जब बिल के ऊपर जाते हैं तो सबके जाते हैं ना, किसी एक का तो नहीं जाता। असल में एक बात आपको याद करूं कि जैसे अमेरिका में मैंने ये देखा कि हम जुम्मे की नमाज में जाते हैं तो मस्जिद के जो अहाता होता है ना, वहाँ पाकिस्तान बना देते हैं। गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देंगे, रास्ते बंद करेंगे, किसी को रास्ता नहीं देंगे। और जैसे कोई नया पाकिस्तानी आएगा तो उसका जूस निकालने के चक्कर में लगे रहेंगे। ये दूसरे मुल्कों वालों में नहीं है। बंगाली बंगाली को सपोर्ट करेगा, इंडियन इंडियन को करेगा। पाकिस्तानी वाहिद देखा मैंने कि जो अपने बंदे का जूस निकालने के इंतजार में बैठे हुए कि कोई कितने नया। नालायक है। यहाँ भी आके ये क्या करते हैं? चोर बाजारी करते हैं। इन मुल्कों में भी आके ये चोर बाजारी करते हैं। जी, तो ये हकीकत है ये बात। आप देखें, इसी वजह से आपको कह रही हूँ कि तहकीक किया करें कि इमरान खान को बाहर से भी फंडिंग हुई। इमरान खान के बारे में दलीप कुमार के लफ्ज देख लें, इमरान खान के बारे इमरान खान इसके इनके फिल्म स्टारों के देख लें, इमरान खान के बारे में सऊदिया के अल्फाज देख लें। हालांकि सऊदिया की लेगेसी को इमरान खान खिलाफ थे। मैं डॉक्टर इस्तार के अल्फाज देख लें, आप हकीम सईद के अल्फाज देख लें, एदी साहब वो के अल्फाज। एक मिनट जहां से आप बोल रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा अंदाजा है। इन्हीं अल्फाजों ने उसका घर बर्बाद किया था। डॉक्टर इसरार हो या कुछ हो, लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस। कोई एक आदमी कैसे, अब यहूदियों का एजेंट वो होगा जिसने अपनी फैक्ट्री में वहां से मशीनरी खरीदी, या इमरान खान होगा? इमरान खान की तो किसी मशीनरी नहीं लग रही। इमरान खान के तो हॉस्पिटलों में भी मशीनरी लगाने वाले वो पाकिस्तानी हैं जो फंड रेजर हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर हैं। अभी सारे डॉक्टर ही तो 100 डॉक्टर खड़े हुए थे, क्योंकि उनका शौकत खाना में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारी फंडिंग करते हैं ताकि पाकिस्तान के बच्चों को अस्पताल मिलते रहे। बोगस जो हो ना, ये बोगस नहीं निकलता है। ये बोगस की वजह से ही तो कादियानी पैदा हुए हैं। उनका बोगस रसूल के साथ है, पाकिस्तानियों का खान के साथ है। कैटेगरी डिफरेंट हो गई। मतलब क्या, काम एक ही है। देखें काम एक ही है। एक बात है, हमें एक बात नहीं, 100 बातें हैं। आप 100 बातें हैं। ये खबीस का बच्चा गंजा, ये गडवी चलाने वाली का बेटा नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बना है। 3 मरतबा वजीर आजम बना है, फिर भी ये गडवी बचा के पैसे मांगता है। अच्छा एक बात वो भी है, मांगता किसी। एक बात है, एक बात है। जैसे अमेरिका में इलेक्शन हुआ आपके सामने, तो ट्रम्प भी है, दूसरा भी है, ठीक है।